شفا جیل میں کیوں ہے اور کیجریوال جیل کے باہر کیوں ہے؟ اس دیش میں اگر کیجریوال کو بیل ہو سکتی ہے اور الیکشن لڑ سکتا ہے 6 مہینے کے بعد، تو شفا کو ہم جیل میں بٹھا کر الیکشن جتائیں گے، یہ جمہوریت کی کامیابی ہوگی۔ ارے اوکھلا کی ہوٹل لسٹ کیجریوال تیرے منہ پہ پھینک کر کہہ رہا ہوں، یہاں سے شفائی جیتے گا انشاءاللہ۔ پانی فری کر دیا، بجلی فری کر دیا، پلا فری کر دیا۔ مودی جی بھی بول رہے یہ فری لو وہ فری لو، یہ کیا ان کے ابا کے اکاؤنٹ سے دے رہے ہیں؟ فری لو فری لو، بغیر کسی کے تم نے یہاں پر شاہین باغ کو کھڑا کیا۔ میں ان ماں اور بہنوں سے، ان نوجوانوں سے، بزرگوں سے کہوں گا، تم کو شاہین باغ کی تاریخ 5 تاریخ کو دوہرانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ کیا آپ دوہرائیں گے اس تاریخ کو؟ یاد رکھو، وفد کا قانون بنے گا تو بھارت میں پروٹیسٹ ہوگا انشاءاللہ۔ یہاں سے انشاءاللہ تعالی جب آپ ووٹ ڈالنے جائیں گے تو مجھے یقین ہے کہ آپ مظلوم کا ساتھ دیں گے، آپ ظالموں کو ہرائیں گے، آپ ناانصافی کرنے والی دونوں پارٹی اور حکومتوں کو سبق سکھائیں گے، اور آپ جو جیل میں جو ہمارے لوگ سڑ رہے ہیں پچھلے 5 سال سے، ان بے زبانوں کی آواز آپ بن کر 5 تاریخ کے دن پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، بہت سے لوگ اس بات کا سوال کر رہے ہیں کہ مجلس نے 2 امیدوار جو دلی کے اسمبلی انتخابات میں اتارے ہیں وہ جوڈیشل کسٹڈی میں ہیں، آخر ان کو کیوں امیدوار بنایا گیا؟ لوگ بہت سے تبصرے بھی کر رہے ہیں، بعض تو من گھڑت باتیں کرتی ہیں، اور جو اس طرح کی بکواس کرتے ہیں وہ قانون کو نہیں جانتے اور ان کے دل و دماغ میں ایک نفرت بھری ہوئی ہے۔ بھارت کے قانون کے لحاظ سے شفا اور طاہر صاحب الیکشن لڑ سکتے ہیں، اسی لیے اسد الدین اویسی نے ان دونوں کو مجلس اتحاد المسلمین کا امیدوار بنایا ہے۔ اب جو لوگ بی جے پی، آپ اور دوسری پارٹیوں کے لوگ اخبارات اور میڈیا سے بات کر کے کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر فلاں دفعات لگی ہوئی ہے، میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، بھارت کی پارلیمنٹ میں قریب 250 ایسے ایم پیز جیت کر آئے ہیں جن پر بہت سیریس کرمنل کیسز ہیں۔ 250 میں سے 170 کے اوپر ریپ کا مقدمہ ہے، ایم پی ہے، مرڈر کا مقدمہ ہے، ایم پی ہے، اٹیمپٹ ٹو مرڈر کا مقدمہ ہے، ایم پی ہے، کڈنیپنگ کا کیس ہے، ایم پی ہے، مہیلاؤں کے خلاف کیسز ہے، ایم پی ہے۔ اس میں بی جے پی کے قریب 94 جیتنے والے کینڈیڈیٹس کے اوپر کرمنل کیسز ہیں، جس میں سے 63 کے اوپر سیریس کرمنل کیسز ہیں۔ تو یہ لوگ جو بکواس کر رہے ہیں، کانگریس پارٹی کے 32 ایم پیز کے اوپر سیریس کرمنل کیسز ہیں، سماجوادی کے 17 کے اوپر سیریس کرمنل کیسز ہیں، شیو سینا کے قریب 4 ایم پیز کے اوپر کرمنل کیسز ہیں۔ یہ لوگ الیکشن جیت کر بھارت کی سب سے بڑی پنچایت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو کچھ نہیں کیے ان پر جھوٹا ایک مقدمہ لگا کر 5 سال سے ان کو جیل میں رکھ کر اگر کوئی تبصرہ کر رہا ہے کہ یہ الیکشن کیوں لڑ رہے ہیں
उन तमाम लोगों से मैं कह रहा हूं कि तुम चुल्लू भर पानी में डूब मरो बेशर्मो। भारत की पार्लियामेंट में इतने एमपी जीत कर आ रहे हैं, एक एक पार्टी के एमपी के ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। तुमको वो दिखाई नहीं देता क्योंकि जिसका नाम शिफा है, जिसका नाम तायर है, तुमको वही नजर आता। इससे तुम्हारी तंग नजरी का इजहार होता है। हम बराबर टिकट दिए, पहली मर्तबा नहीं दिए हैं, फिर से देंगे। अगर जो कोई सरकारें किसी के ऊपर जुल्म करेगी और नाहक उनको जेल में डालेगी, तो जमहूरियत का तकाजा ये भी है कि आप उन बेजुबानों की आवाज बने। मजलिस ने कोई गुनाह नहीं किया, बल्कि मजलिस ने अच्छा काम किया। और अगर कोई मुझे पूछेगा क्या कह रहे हो, तो क्या जॉर्ज फर्नांडिस के ऊपर बड़ौदा डायनेमाइट केस नहीं बुक हुआ था? बिहार के मुजफ्फरपुर से जेल में बैठकर जॉर्ज फर्नांडिस इलेक्शन जीते, तो इंशाअल्लाह ताला शिफा भी जेल में बैठकर ओखला का इलेक्शन जीतेगा और एमएलए बनेगा इंशाअल्लाह ताला। अब आप बताइए कि जो 5 साल से जेल में है, ना कोर्ट में कार्रवाई चलती है, ना मुकदमा खत्म होता है, ना विटनेसेस का एग्जामिनेशन होता है, मगर प्रोसेस एक पनिशमेंट बना दिया गया। शिफा जेल में क्यों है और केजरीवाल जेल के बाहर क्यों है? शिफा जेल में क्यों है? अमानतुल्लाह को बेल क्यों हो गई? सिसोदिया को बेल क्यों हो गई? शिफा को बेल क्यों नहीं होती? जैन को बेल हो जाती है, ताहिर हुसैन को बेल नहीं होती है। बताओ कौन किससे मिला हुआ है, ये आपको 5 तारीख के दिन तय करना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुख्यमंत्री जेल में था 6 महीने, छोटा रिचार्ज केजरीवाल 6 महीने शराब के केस में जेल में था और आज 6 महीने के बाद निकलकर मुख्यमंत्री बनकर जेल में था और शिफा जेल से इलेक्शन लड़ रहा है। हमारी बहन आवाम के दरमियान में आकर अपने मासूम बच्चे और अपने शौहर के लिए बेबसी का इजहार कर रही है, तो जनता को तय करना है। अगर केजरीवाल इलेक्शन लड़ सकता है और जीतने का दावा कर सकता है, तो ओखला की आवाम में अगर हमीयत है, और अगर ओखला की आवाम में हमीयत है, मुझे यकीन है, अगर आप में हरारत है, अगर आपके दिलों में एक बेदारी है, तो आपको 5 तारीख के दिन के इनकलाब रकम करना पड़ेगा। इस देश में अगर केजरीवाल को बेल हो सकती है और इलेक्शन लड़ सकता है 6 महीने के बाद, तो शिफा को हम जेल में बिठाकर इलेक्शन जिताएंगे। ये जमहूरियत की कामयाबी होगी। अगर नरेंद्र मोदी के पार्टी में ऐसे 90 एमपी हैं जिन पर क्रिमिनल केसेस है, तो मजलिस ने कोई गुनाह नहीं किया, कानून इजाजत देता है। हमने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। जो लोग ये आम आदमी पार्टी के कह रहे हैं नहीं वोट कटेगा, अरे 94 से लेकर 2019 तक यहां से अल्पसंख्यक समाज का उम्मीदवार एमएलए बना। अब तुमको बीजेपी कैसे याद आ गई? तुमको ईडी पकड़ के लेके गई, तुम कौन सी चाय पीकर बेल हासिल करे हमको बताओ। तुमको बेल कैसे मिल जाती है, शिफा को क्यों नहीं मिलती? तुम्हारे आका केजरीवाल को 6 महीने के बाद बेल मिल जाती है, शिफा को क्यों नहीं मिलती? सिसोदिया 16 महीने जेल में बेल मिल गई, जैन जेल में बेल मिल गई। बताओ कहीं तुम कुछ सेटिंग तो नहीं कर लिए? तुम मुझ पर इल्जाम लगाते हो और आज हम मजलिस उम्मीदवार खड़ा करी तो नहीं बीजेपी जीत जाएगी। अरे ओखला की वोटर लिस्ट केजरीवाल तेरे मुंह पे फेंक कर कह रहा हूं, यहां से सिपाही जीतेगा इंशाअल्लाह ताला। ये
डराने का काम मत करो। आप आम आदमी पार्टी के लोगों नहीं बीजेपी आ जाएगी। मुझे मालूम है कि तुम्हारे दिल में एक डर पैदा हो गया है। तुमको नजर आ रहा है तुम्हारी नाकामी जो इंशाअल्लाह हकीकत में तब्दील होगी। लोग बोल रहे हैं और मैंने खुद देखा है, 5 साल पहले भी मैं आपके दरमियान में आया था और आज भी आया हूं। ओखला में कोई डेवलपमेंट, विकास, तरक्की नजर नहीं आती। केजरीवाल, मैं तुझको चैलेंज कर रहा हूं, सुबह आ जा इस रोड पर, तू यहां ठहर के बोल। सुबह 9 बजे आ जा केजरीवाल, मैं भी आता हूं। तुमको एक आवाज सुनाई देगी, पानी ले लो, पानी ले लो, पानी ले लो। पहली मंजिल पर कहा जाएगा 25 रुपये, दूसरी मंजिल पर 30 रुपये। अरे मफलर, कितना झूठ बोलेगा तू, कितना झूठ बोलेगा। पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दिया, पुला फ्री कर दिया। मोदी जी भी बोल रहे ये फ्री लो, वो फ्री लो। ये क्या इनके अब्बा के अकाउंट से दे रहे हैं? फ्री लो, फ्री लो। ये जनता का पैसा है, मगर ओखला की आवाम तुमको पानी फ्री में मिलने का दावा केजरीवाल और मोदी कर रहे हैं। मेरी मां और बहनों, तुम्हारे अकाउंट में से पैसे डालने का वादा कर रहे हैं, मगर 5 तारीख के दिन तुमको याद रखना पड़ेगा कि न शिफा फ्री है, न ताहिर फ्री है, न सैफी फ्री है। से कई लोग फ्री नहीं है, ये लोग फ्री नहीं है, मगर दावा तो बहुत करते हैं केजरीवाल पानी नहीं पहुंचा सके यहां पर, हम ऐसा कर देंगे। बड़े बड़े बुलंदबाज दावे करते हैं। आओ केजरीवाल, ओखला में तुमको माउंट एवरेस्ट हम दिखाते हैं, जो तुमने यहां पर कचरा बकट एक पहाड़ बनाकर रख दिया। यहां ओखला में आप मेरी बात से अगर मुत्तफिक हैं तो हाथ उठाकर कहिए। अभी नहीं, बोलने के बाद। 1 गज जमीन की कीमत कितनी है? 3 लाख के ऊपर है ना, 3.5 लाख के करीब है, 3-3.5 लाख। 100 गज का फ्लैट 60 लाख के ऊपर है। बताओ फिर यहां पर डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ? जब इतनी महंगी जमीन है, इतने महंगे फ्लैट बिकते हैं, तो फिर यहां पर डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ? 10 साल से केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, सब जगह डेवलपमेंट हो रहे हैं। अरे केजरीवाल, जो आज गलियों में मैं पैदल चला, तुम 10 मिनट चलकर दिखाओ। मुझ पर तो आज फूल बरसाए गए, तुम पर चप्पलें बरसाएगी हमारी। इतने खड्डे यहां पर हैं, इतने खड्डे यहां पर हैं, गंदगी है, ना सफाई का कोई इंतजाम है, और 10 साल से बाजा बजा रहे। याद रखो, ओखला की आवाम, मोदी और केजरीवाल दोनों भाई भाई हैं, एक सिक्के के 2 रुख हैं। इनमें कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। इनकी सोच से ये दोनों आरएसएस से निकले हैं। एक आरएसएस की शाखा से निकला, एक आरएसएस के इंस्टीट्यूट से निकला। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। हिंदुत्व की बात दोनों करते हैं। अरे बोलो, तुम्हारी जबान पे कभी नाम आया 5 साल में ताहिर हुसैन का? यही ताहिर हुसैन के मकान के ऊपर मौजूदा मुख्यमंत्री, ये बरसर इक़्तिदार पार्टी के कई लोग ताहिर हुसैन के घर पर बैठकर कहते थे खाना खिलाओ, और जब ताहिर हुसैन जेल को चला गया तो तुमने उसकी तरफ देखना तो छोड़ो, तुमने उसका नाम तक नहीं लिया। बताओ, मैंने कौन सा गुनाह किया? कौन सा गुनाह हमने किया? अगर हम जो लोग आज जेल की 4 सलाखों के पीछे, उन दीवारों के पीछे जिनको खामोश और गुमनामी की जिंदगी में डाल दिया गया था, मजलिस यही चाहती है कि तुम जेल में डालोगे तो हम उनको जनता में लाके खड़ा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। उनको अगर बेल नहीं मिलेगी तो वोट के जरिए उनको हम कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये सदालत
इंडिपेंडेंट हैं, हम इसकी इज्जत करते हैं, मगर उन सरकारों ने उनको जेल में डाला था। कानून का इस्तेमाल सरकार ने किया। और क्या गलती थी शिफा की कि CAA का एहतजाज शिफा ने करवाया था। बहुत अच्छा किया। डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में एहतजाज होना चाहिए, मगर निशाना किसको बनाया गया था? जब शाहीन बाग का यह एहतजाज जो पूरे मुल्क के लिए एक मशाले राह बन गया था, यही केजरीवाल ने कहा था ये बीजेपी स्पॉन्सर्ड है। ओखला की आवाम, आज आपके पास एक मौका आ रहा है कि जिन्होंने आपके एहतजाज को बीजेपी स्पॉन्सर्ड कहा था, आप अपने वोट के जरिए उनको आपको जवाब देना है। जब कोविड में तबलीगी जमात के मरकज को ताला लगा दिया गया तो सबसे पहले सुपर स्प्रेडर का नाम तबलीगी जमात को देने वाला कौन था? यही केजरीवाल की सरकार थी। यही केजरीवाल की सरकार थी, जो बाद में अल्लाह ने दिखा दिया कि सब झूठ था। मरकज को बंद कर दिया गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये ओखला है जहां पर डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपनी आखिरी सांस ली। ये ओखला है जहां पर गांधी आए। ये ओखला है जहां पर बड़े बड़े जय्यद उलमाए कराम आए। आज उस ओखला की आवाम को अपनी बेदारी का एक सबूत देना पड़ेगा। अरे जो लोग बीजेपी का और डर दिखा रहे हैं, अरे यहां पर 94 से लेकर 2019 तक यहां पर कोई बीजेपी नहीं जीती, न इस बार भी जीतेगी, मगर तुमने कुछ काम नहीं किया। यहां पर कुछ काम डेवलपमेंट का नहीं किया। सरकार तुम्हारी, एडमिनिस्ट्रेशन तुम्हारा, तुम अगर दूसरे दिल्ली के असेंबली हल्के में डेवलपमेंट का तुमने काम किया, यहां पर कौन सा काम किया बताइए आप? कुछ काम नहीं किया गया यहां पर। तो डेवलपमेंट के लिए भी आपको शिफा के हक में अपनी वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो लोग आज जेल में 5 साल से सड़ रहे हैं, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा दिस कैनॉट गो ऑन, वी विल नॉट अलाउ दिस। कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर हुसैन की बेल पिटीशन पर एक ऑनरेबल जज ने कहा कि 5 साल में इनके केस में क्या पेशरफ्त हुई है। मेरे भाई, जो लोग मुझ पर इल्जाम लगाते हैं, इल्जाम इसलिए लगाते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी हमेशा बेजुबानों के साथ खड़ा था और खड़ा रहेगा। जो कमजोर है वो मेरी आंखों में मजबूत था और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। जो हुकूमतें और वक्त के जालिम और जाबिर लोग किसी को दबाना चाहते हैं तो मजलिस उनको दबाने नहीं देगी, हम लड़ेंगे। CAA का कानून भारत की पार्लियामेंट में लाया गया था। मोदी के 329 के सामने मैं और इम्तियाज जलील ने खड़े होकर कहा कि हम तुम्हारे उस काले कानून को नहीं मानते, हम उसको फाड़ते हैं। हम भी नहीं मानते उस कानून को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये 10 साल से केजरीवाल की सरकार है। 18 महीने से वक्फ बोर्ड नहीं बनता। बताओ केजरीवाल के मेले तुम्हारी पार्टी ने वक्फ बोर्ड क्यों नहीं बनाया? तुम नहीं बनाए, मोदी ने अपने ओहदेदारों को बिठा दिया। आज जामा मस्जिद के हुदूद में एक मूर्ति को लगा दिया गया। ये केजरीवाल और उसकी सरकार जिम्मेदार है। वक्फ की प्रॉपर्टीज को दिल्ली में लूटा जा रहा है और ये बीजेपी का डर दिखा रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ओखला में बाज ऐसे अमराज हैं, ओखला में बाज ऐसे अमराज हैं, उनका इलाज करने के लिए क्या बोलते हम लोग? शिफा। बीमारी का इलाज, उसका अपोजिट क्या है? शिफा, है ना? तो इन तमाम लोग जिनके जहनों में नफरत की बीमारी है, जिनकी सोच और फिक्र में यह है कि नहीं, क़यादत नहीं उभरने देंगे। आज आम आदमी पार्टी कह रही है बीजेपी आ जाएगी। कोई कहता ओवैसी साहब, आप तो कौम की लीडरशिप की बात करते हैं। हाँ, मैं करता हूं, करता रहूंगा,
مگر میں بےایمانوں کی اور بے نامی کی لیڈرشپ کا قائل نہیں ہوں. میں آزاد لیڈرشپ کا قائل ہوں جو غریبوں کے لیے لڑے. ارے تمہاری زبان تو تمہارے کیجریوال کے سامنے جھک جاتی ہے. تم منہ نہیں کھول سکتے. اگر تم منہ کھولتے تھے تو تم سپاہ کا ناز نہیں. اگر تم آزاد ہوتے تو تم تبلیغی جماعت پر جھوٹا الزام نہیں لگاتے. اگر تم آزاد ہوتے تو تم یہاں پر ڈیولپمنٹ کا کام کرواتے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے اپیل ہے کہ یہ بی جے پی کا ڈر دکھاتے ہیں. ارے بی جے پی کا ڈر دکھانے والوں، 2024 کے لوک سبھا کے چناؤ میں کیا میں آیا تھا؟ کیا میں آ کر بولا تھا آپ کو یہ میرا امیدوار ہے تو بی جے پی پورے کیسے جیت گئی؟ کیا میں آ کر آپ کے کان میں کل کرسی پڑھ کے پھونکا کہ بی جے پی کو جتا دو؟ یہ جھاڑو کیا کر رہا تھا اس وقت؟ یہ مفلر کیا کر رہا تھا؟ یہ چھوٹا ریچارج کیا کر رہا تھا؟ ارے تو ایک سیٹ پر بی جے پی پر کامیابی حاصل نہیں کرا، ہم 2 سیٹ لڑ رہے تو اس کی نیند حرام ہو گئی. کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ یہ کبھی نہیں چاہتے کہ آپ کی لیڈرشپ بنے، آپ کے آزاد سیاسی آواز پیدا ہو. یاد رکھو میری اس بات کو، میں جب تک زندہ رہوں گا میں یہ بات کہتا رہوں گا کہ بھارت کی جمہوریت کو اگر مضبوط کرنا ہے تو بھارت کی سب سے بڑی اقلیت کو اپنے سیاسی لیڈرشپ کو بنانا پڑے گا. تم مجھے پسند نہیں کرتے، تم بناؤ، میں تمہارے ساتھ پیچھے کھڑے رہنے کو تیار ہوں. مگر یاد رکھو، میں اس دنیا میں رہوں یا نہ رہوں، اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو 50 سال کے بعد تم کو میری تقریر کے الفاظ یاد آئیں گے. ایک دیوانہ آ کر ہم سے کہا تھا کہ اگر ہم کو اپنے مسائل کو حل کرنا ہے، اگر ہم کو انصاف چاہیے، اگر ہم کو عزت چاہیے، اگر ہم کو مان سمان چاہیے، اگر ہم کو اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے باپ کو اپنے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں، جیل میں نہیں، تو لیڈرشپ بناؤ میرے بھائی، لیڈرشپ بناؤ. یاد رکھو، کوئی آسمان سے اتر کر تم کو لیڈر نہیں بنائے گا. بغیر کسی کے تم نے یہاں پر شاہین باغ کو کھڑا کیا، تم نے کھڑا کیا شاہین باغ کو، کوئی باہر سے نہیں آیا تھا. تم نے پوری بھارت کو ایک راہ دکھائی کہ احتجاج کیا ہوتا ہے. میں شاہین باغ کے ان ماں اور بہنوں کو سلام کرتا ہوں کہ تم نے بے باکی سے نکل کر بھارت کی ہر مہیلا کو کہا کہ دیکھو ہم نکل کر آج احتجاج کر رہے. میں ان ماں اور بہنوں سے، ان نوجوانوں سے، بزرگوں سے کہوں گا، تم کو شاہین باغ کی تاریخ 5 تاریخ کو دوہرانا ہے انشاءاللہ تعالی. کیا آپ دوہرائیں گے اس تاریخ کو؟ کیا آپ شاہین باغ کی تاریخ کو دوہرائیں گے؟ یا پھر ہم بھول جائیں گے ہمارے ان بچوں کو، ہماری بیٹیوں کو جیل میں آج سڑ رہے ہیں، جن کی اولاد اپنے باپ کو دیکھنے کے لیے تڑپ جاتی ہے، جن کی بیویاں ان کو دیکھنے کے لیے تڑپ جاتی ہے، جن کی ماں اور باپ رو کر راتیں گزار رہے، بیمار ہو جا رہے، مگر ان کو بیل نہیں ہوتی ہے. ان کا جرم صرف اتنا ہے کہ ان کا نام شفار، طاہر اور سیفی ہے. جس کا نام کیجریوال ہے وہ باہر ہے. ارے تم جب باہر آ سکتے تو ہم کیوں نہیں آ سکتے؟ بتاؤ، یہ دوہرا معیار کیسا چلے گا؟ بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے ہمت اور حوصلے کو بلند رکھیے. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم 2 سیٹ پر لڑ رہے ہیں، دونوں پر انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. یہ آپ کی کامیابی ہوگی، یہ آپ کی کامیابی ہوگی. ارے جو باہر رہ کر ڈیولپمنٹ نہیں کرا سکا، جو اندر ہے وہ جب باہر آئے گا تو شیر جب اوکھلا کی سڑکوں پر چھپا چلے گا تو اس کے نام سے، اس کی قربانیوں سے، اس کی محنت سے مجھے یقین ہے کہ اوکھلا میں ایک نئی تاریخ لکھی جائے گی. یہ تاریخی جگہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں. یہاں پر بہت سے ڈیولپمنٹ کے کام کروانا ہے. حیدرآباد میں مجلس کے 7 MLA ہیں. ہم نے میری کانسٹیٹوئنسی میں
800 करोड़ का एक फ्लाईओवर बनाया हूं 7 MLA के साथ। हुकूमत टीआरएस की थी, अब कांग्रेस की है। चंद्रायन गुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी का असेंबली हल्का, वहां पर कांग्रेस की हुकूमत ने 290 करोड़ रुपए का खाली सीवरेज लाइन का काम शुरू हुआ है। याद रखिए ये क्यों पॉसिबल है, क्योंकि आपने अपनी लीडरशिप को बनाना है। अगर आप अपनी लीडरशिप को बनाएंगे, ये आपकी कामयाबी होगी। याद रखो, कांग्रेस हो, आप हो, बीजेपी हो, एक बात पर मुत्तफिक है कि सबकी लीडरशिप हो सकती है, मगर जो जाकिर हुसैन का नाम लेने वाले हैं, जो अल्लामा फजल कैराबादी का नाम लेने वाले हैं, जो मौलाना महमूदुल हसन का नाम लेने वाले हैं, इन लोगों की लीडरशिप नहीं होने देंगे। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अपनी लीडरशिप को पैदा करो, और वो कैसे पैदा होगी? आपके मुत्तहिद होने से, आपके एक वोट के सही इस्तेमाल करने से। यहां से कोई बीजेपी नहीं कामयाब होगी। ये केजरीवाल नंबरी झूठा है, झूठा नंबर 1 है। अगर झूठों का कॉम्पिटिशन होगा तो 2 लोग फाइनल में आएंगे, एक मोदी और दूसरा केजरीवाल। इतनी झूठ बोलते हैं, सफाई से बोलते हैं, और मासूम जनता उनका यकीन भी कर लेती है। मैं ओखला की आवाम से अपील कर रहा हूं कि ओखला की डेवलपमेंट के लिए, और जो आपके दरमियान में खड़े होकर आपकी आवाज बनाओ, जिसने आपके लिए आफतें उठाई, जिसने आपके रोशन मुस्तकबिल के लिए अपना चैन और सुकून कुर्बान कर दिया, आज हम शिफा के नाम पर नहीं मेरे भाई, हम ज़मीर की बुनियाद पर वोट देंगे शिफा को इंशाअल्लाह ताला। जिसके सीनों में धड़कता हुआ दिल होगा वो शिफा को वोट देगा। जिसका ज़मीर मुर्दा नहीं होगा वो शिफा को वोट देगा। जिसके दिलो दिमाग में तड़प होगी वो शिफा को वोट देगा। जिसके जिस्म में हरारत होगी वो शिफा को वोट देगा। जो हमारी बहन के आंसुओं को अपनी बहन समझेगा वो शिफा को वोट देगा। जो ओखला को अपना घर समझता है वो शिफा को वोट देगा। जालिमों का साथ मत दो, मजलूमों का साथ दो, इंसाफ का साथ दो, इंसाफ को सर बुलंद करो। और मोदी को हम कहना चाह रहे हैं कि आप वक्फ का बिल बनाने जा रहे हैं, याद रखो वक्फ का कानून बनेगा तो भारत में प्रोटेस्ट होगा इंशाअल्लाह।